and welcome to today's session. Yes, I would like to introduce our today's expert. Today we have with us Mr. M.A. Vora sir, and sir has more than 6 years experience in teaching and has vast experience in the field of welding. And yes, sir has completed various projects in the area of welding, and sir have more than five research papers with respect to this field. And sir has also gone for the various training and workshops in NDTs, welding simulators, and advanced welding processes. So obviously, we know that yes, welding is an essential component of many industries, such as the automotive industries, fabrication industries, construction industries, and many more. So without this form of metal work, so many things we can say, including buildings, gates, vehicles, and many more appliances would not exist. So now I would like to invite our expert for today's webinar presentation. Sir, you can start your presentation. Thank you, sir. Thank you, Om Kamal sir, for the nice introduction. Before going to start today's session, I request you to follow the government rules in this COVID crisis. Follow the guidelines given by the Gujarat governments. Wear the masks, use the masks, and use the sanitizers, and don't go outside if it's not requirement. And sir, my presentation is visible right now. No, Because sir. I am facing some Yes. problems, sir. Here, Yes, sir. Yes, sir. visible or not? No. Wait, sir. I think there is some problem. Mm, wait, wait, wait. Wait, sir. Wait. I think right now it is visible. Yes, sir. Visible, visible. Yes. Okay. So today I will share you some basic information about a welding process or some basic terminology related with the welding. So uh, in this session, I will share some welding related terms about the common welding base materials, then which are the various advantages and the disadvantages of the welding, and how welding is beneficial compared to the casting and the riveting process. Then what are the various general applications or various application in which a welding are used, industry as well as the in a domestic level. Then what are the various types of the weld joints which are used in a different applications. Uh, then what are the various classifications of the welding process. Then what are the principle of the shielded metal arc welding. Then welding as a carrier. तो आप सबको पता है कि वेल्डिंग एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है. हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें तो कास्टिंग प्रोसेस है, रिवेटिंग प्रोसेस है, बहुत सारी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिससे हम हमारा प्रोडक्शन करते हैं. लेकिन वेल्डिंग एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसेस है जो ज्यादातर वेल्डिंग स्ट्रक्चर, ब्रिज कंस्ट्रक्शन और मेनी मोर एप्लीकेशन के लिए हम यूज करते हैं. तो वेल्डिंग इज नथिंग बट अ ज्वाइनिंग प्रोसेस है ना, इन विच वी आर ज्वाइनिंग अ टू मटेरियल, आइदर इट इज सिमिलर और ए डिसिमिलर मटेरियल. ड्यूरिंग द प्रोसेस वी आर अप्लाइंग द प्रेशर और नॉट, right, or by adding a filler material or not.
एज पर द रिक्वायरमेंट। मीन्स वेल्डिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि दो पार्ट्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं, और प्रोसेस के दरमियान हम प्रेशर या दबान बोलते हैं, दबान अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग की बात करें तो वहाँ हम प्रेशर का यूज करते हैं। बाय एडिंग द फिलर मटेरियल और नॉट, मीन्स हम फिलर मटेरियल की रिक्वायरमेंट हमारी के नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। Then we can join even a dissimilar metal, for example copper to stainless steel, copper to another material as per the requirement। और ये जो वेल्डिंग प्रोसेस है इसकी वास्ट एप्लीकेशन है ना, मीन्स देट आर वेली द मेटल्स दे आर अलॉयज, बहुत सारी मटेरियल ऐसी है जो हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वेल्डिंग प्रोसेस में जो इंपॉर्टेंट है वो हीट सोर्स है ना, हीट सोर्स है जिससे हम वेल्डिंग प्रोसेस को क्लासीफाई कर सकते हैं। So in welding we are using a heat to melt the weld joint and get a desired joint. And types of joints, basically there are the variety of the joints we are using in the different applications. Number one is a mechanical bonding, second is a atomic bonding। mechanical bonding में हम देखें तो there are the temporary bonding by using the screw elements and the other fixtures। Then permanent or semi-permanent joints, there are the rivets, stitches, staples, shrink fits। And we are using a rivet in a shipbuilding, in a boiler, stitches we are using in the peepers and the other application, staples also are used, and the shrink fit we are uses in the wheel, right। And second is the atomic bonding classification, in this category welding process falls। तो यहाँ हमें देखना है कि जो वेल्डिंग प्रोसेस है वो एटॉमिक बॉन्डिंग कैटेगरी में आता है, कि जहां हम क्या कर रहे हैं, वर्कपीस को मेटल करते हैं, उसका एटॉमिक बॉन्डिंग करते हैं। पर कॉमन वेल्डिंग बेस मेटल मीन्स हम कौन सी मटेरियल जो है वो वेल्ड कर सकते हैं। इसमें नंबर वन है फेरस मटेरियल, सेकंड वन इज अ नॉन फेरस मटेरियल। In the past we are using only a ferrous material for the welding, but nowadays due to the advancement of the welding process we are using a non-ferrous material also। In the category of the ferrous material there are the various materials as per the carbon percentage। The number one is a wrought iron, second one is a cast iron, then the carbon steel and the cast steel, stainless steels। And in the category of the non-ferrous material they are the aluminiums, coppers, magnesiums, nickels and zincs and their alloys। These all can be welded by using a different welding process। And you know that aluminium and magnesiums are the very reactive materials, so the extreme care to be required during the welding of this aluminium, magnesium and other reactive materials। Now what are the general advantages and disadvantages of the welding? That's why the welding comes out a very important process compared to the casting, powder metallurgy, then the riveting, hot working, cold working process। The number one is a good weld is as strong as the base metal। Means जो भी आप दो पार्ट्स का वेल्डिंग करते हो है ना, तो जो ज्वाइंट का पार्ट है उसका जो स्ट्रेंथ है वो हमें सेम मिलेगा जो बेस प्लेट का स्ट्रेंथ है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ द वेल्ड ज्वाइंट। यहाँ कोई भी ज्वाइंट वीकनेस या उसकी स्ट्रेंथ हमें यहाँ कम नहीं मिलेगी। सेकंड वन इज अ जनरल वेल्डिंग इक्विपमेंट इज नॉट वेरी कॉस्टली। If you go for the casting, if you go for the powder metallurgy, then this process require too much capital investment। For example, in the casting you require a mold, you require a pattern, you require a furnace to melt the metal, you require a pouring system, you require some skillful engineers to calculate the different allowances, solidification time। So there is too much work required for the other manufacturing process। But in the welding there are the very few equipment requirement, is a power machine source and the welder and the some accessories you can start the welding process। So it's a very cheaper process compared to the another manufacturing process। Then the welding is a portable manufacturing process। means a welding आप हर जगह कर सकते हो, एनी पोजिशन में कर सकते हो, राइट। बिकॉज
all the equipments of the welding are nowadays portable. It is a portable process. Then welding permits considerable freedom in design. This is a very important benefit because जब हम कास्टिंग करते हैं तो कास्टिंग में हम पहले तो क्या करेंगे, तो मोल्ड का डिजाइन करेंगे, उसका अलाउंसेस क्या है उसके बारे में कैलकुलेट करेंगे, फिर पैटर्न बनाएंगे, फर्नेस के बारे में सेटअप करेंगे और फाइनल हम प्रोडक्ट को निकालेंगे मोल्ड में से। और जब हमें चेंज करना है तो हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कोई चेंजेस तो नहीं है, क्योंकि हम एक चेंज करेंगे, इवन अ सिंगल चेंज we have to change the entire process in the casting process or some riveting process. But in welding you can change at any step in the welding process. अगर आप कुछ कोई वेल्डिंग स्ट्रक्चर का आप वेल्डिंग कर रहे हो तो फॉर एग्जांपल आपको स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करना है, आपको कुछ जॉइंट में चेंजेस करना है, कुछ लेंथ में चेंजेस करना है, तो आप इजीली उसको चेंज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ जो सेटअप है सिर्फ यहाँ आपको जॉइंट बनाना है और कोई सेटअप लगाने की जरूरत नहीं है. सो इट गिव्स tremendous benefit of the to change in the design. Then a large number of metals are both similar and the dissimilar can be joined by the welding process. Means variety of the materials to be welded by the welding process. Even you got the ferrous material, if you use a non-ferrous material, if you use the even alloys, right? Because nowadays the very advanced materials developed, and for this material also a new advanced welding process also developed. In the particular area of the aerospace and the military and the nuclear equipment. Means कि जहाँ बहुत सारे ऐसे नए मटेरियल जो डेवलप किए गए हैं उस मटेरियल को भी हम वेल्डिंग कर सकते हैं by using some different techniques. Then welding can join workpiece by spots. यहाँ आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आपको स्पॉट वेल्ड करना है, सीम वेल्ड करना है, प्रेशर टाइट वेल्ड करना है या सिंपल उसको कंटिन्यूअस वेल्ड करना है, तो यहाँ आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट. देन वेल्डिंग कैन बी मैकेनाइज्ड. मींस आप कास्टिंग प्रोसेस को ऑटोमाइज नहीं कर सकते. ऐसी बहुत सारी ऐसी प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग जिसमें लिमिटेशन है कि इस प्रोसेस को आप ऑटोमेशन मोड पे नहीं ला सकते, लेकिन वेल्डिंग एक ऐसी प्रोसेस है कि आप कंप्लीट या पार्शियली उसको ऑटोमेशन मोड में ला सकते हो. फॉर एग्जांपल इन ऑटोमोबाइल आपने देखा होगा कि जो कार की बॉडी है इसमें जो रोबोट है वो वेल्डिंग करते हैं, स्पॉट वेल्डिंग करते हैं, कंटिन्यूअस सीम वेल्डिंग करते हैं, तो आप पूरी प्रोसेस को आप मैकेनाइज कर सकते हो. डिसएडवांटेजेस. वेल्डिंग गिव्स आउट अ हार्मफुल रेडिएशंस, फ्यूम्स एंड द स्पेटर. यहाँ सबको तकलीफ होती है ना. बहुत सारे लोग वेल्डिंग को प्रीफर क्यों नहीं करते एज अ कैरियर, क्योंकि सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन है, वेल्डिंग से हमारा जो आंख का प्रॉब्लम है, आई प्रॉब्लम है, हमारा बॉडी डैमेज होगा, हमारा जो रेडिएशन निकलता है वेल्डिंग में से वो हमें अफेक्ट कर सकता है. तो यहाँ ये लिमिटेशन है वेल्डिंग की कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वहां से हार्मफुल रेडिएशन निकलते हैं. इवन जो लाइट निकलती है वो 10,000 टाइम्स देन द विजिबल लाइट्स है ना, वो 10,000 टाइम्स ज्यादा होती है जो हमारी विजिबल लाइट है उससे. इससे हमारी जो आई प्रॉब्लम है वो क्रिएट होती है. देन द फ्यूम्स है ना, देयर इज द ब्रीथिंग प्रॉब्लम, तो फ्यूम्स से भी हमारा ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होता है. देन द स्पेटर आल्सो अफेक्ट्स आवर प्रॉब्लम टू द बॉडी. एंड welding results in the residual stress and the distortion of the workpiece. Means welding जो है वो related with the heat. welding है वो इसमें क्या होता है कि हम वर्कपीस को मेल्ट करके जॉइंट बनाते हैं. तो वेल्डिंग के दरमियान जब आग जनरेट होता है तो वर्कपीस क्या होता है कि मेल्ट होता है, और मेल्टिंग जो है और मेल्टिंग के दरमियान जो हम उसका जो सॉलिडिफिकेशन है या और कूलिंग है जो हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमें यहाँ रेसिडुअल स्ट्रेसेस और डिस्टॉर्शन का प्रॉब्लम क्रिएट होगा. तो यहाँ हमें प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी. आइदर वी हैव टू डू अ प्री हीटिंग, आइदर वी हैव टू डू अ पोस्ट हीटिंग प्रोसेस फॉर द वेल्डिंग. इससे हम क्या कर सकते हैं कि जो रेसिडुअल स्ट्रेस और डिस्टॉर्शंस है उसको रिड्यूस कर सकते हैं. Then the jigs and fixer are generally required to hold and the position the parts to be welded. Means
वेल्डिंग में क्या है कि आपको कोई पार्ट्स है वो सेम एक्सिस में चाहिए, सेम प्लेन में चाहिए, उसका प्रॉपर अलाइनमेंट चाहिए, तो हम मैन्युअली कर नहीं सकते। इसके लिए हमें स्पेसिफिक जिग्स एंड फिक्सर चाहिए, पर्टिकुलर फॉर द मास प्रोडक्शन। तो ये लिमिटेशन है कि हमें जिग्स और फिक्सर की रिक्वायरमेंट होती है। देन अ स्किल वेल्डर इज मस्ट रिक्वायर टू डू अ गुड वेल्ड ज्वाइंट। मीन्स हमें एक अच्छा वेल्ड ज्वाइंट चाहिए, एक अच्छा वेल्ड ज्वाइंट बनाना है, हायर स्ट्रेंथ वाला वेल्ड ज्वाइंट बनाना है, तो हमें यहाँ स्किल वेल्डर चाहिए, स्किल पर्सन चाहिए जो अच्छी तरह वेल्ड कर सके, वेल्डिंग प्रोसेस को इफेक्टिवली कंट्रोल कर सके। वेल्डिंग के जो पैरामीटर है, फॉर एग्जांपल करंट, वोल्टेज, वेल्डिंग स्पीड, वेल्डिंग फीड, इलेक्ट्रोड एक्सेंट्रेशन, ये सभी जो पैरामीटर है वो इफेक्टिवली कंट्रोल कर सके और जो ज्वाइंट है उसको अच्छा बना सके या क्वालिटी वेल्ड ज्वाइंट ला सके। देन वेल्डिंग हीट प्रोड्यूस अ मेटलर्जिकल चेंजेस, है ना, आपने पढ़ा होगा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। आई थिंक आपने मटेरियल साइंस सब्जेक्ट में पढ़ा होगा कि जब हम कोई पार्ट्स को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो इसमें माइक्रोस्ट्रक्चरल चेंजेस होता है, और ये माइक्रोस्ट्रक्चरल चेंजेस को हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारी जो डिजायर प्रॉपर्टी है वो हम नहीं ले सकते, नहीं पा सकते। फॉर एग्जाम्पल हम वेल्डिंग करते हैं और हमारा जो माइक्रोस्ट्रक्चर है वो मार्टेनसाइट आता है, तो क्या होता है कि हमारी जो सरफेस वो ब्रिटल और हार्ड बन जाती है, राइट। और जब हम वो पार्ट्स को जब रियल एप्लीकेशन में लाएंगे तो वो पार्ट्स वो ब्रेक हो जाएगा और फेलियर हो जाएगा। तो हमें वेल्डिंग के दरमियान कितना टेम्परेचर राइज होगा, कितना डाउन होगा, उसका भी हमें यहाँ ध्यान रखना है, और वह जो भी मेटलर्जिकल चेंजेस है उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस और प्री हीट ट्रीटमेंट और पोस्ट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है हमें यहाँ करनी पड़ेगी। A welded joint for any reason needs a stress relief heat treatments, राइट। मैंने अभी बोला कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो बहुत सारा इसमें मेटलर्जिकल चेंजेस होता है, तो यहाँ हमें प्री हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करनी पड़ेगी फॉर द डिजायर प्रॉपर्टीज ऑफ द वेल्ड पार्ट्स। हमें जैसी प्रॉपर्टी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हमें हायर स्ट्रेंथ चाहिए, हायर डक्टाइल पार्ट्स चाहिए, तो हमें यहाँ हीट ट्रीटमेंट करके वो प्रॉपर्टीज लानी पड़ेगी। वेल्डिंग एज कंपेयर टू द कास्टिंग प्रोसेस, आप सबको पता है कि कास्टिंग में करते हैं तो हमें मोल्ड चाहिए, पैटर्न चाहिए, उसके लिए हमें फर्नेस को प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर मटेरियल को भी हमें मेल्ट करने से पहले उसको भी हमें रेडी रखना पड़ेगा। देन हमें पोरिस सिस्टम डिजाइन करनी पड़ेगी, गेट एंड राइजर्स है उसको डिजाइन करना पड़ेगा। तो ये कास्टिंग प्रोसेस है। तो कंपेयर टू द कास्टिंग प्रोसेस, हाउ वेल्डिंग प्रोसेस इज मोर एडवांटेजियस और मोर बेनिफिशियल। तो क्या उसके रीजन है? वेल्डिंग इज अ मोर इकोनॉमिकल, मीन्स welding require a very few resources like welding machines, a welder personnel, and some fixers, jigs and fixers. But compared to welding, in casting we require a mold, pattern, furnace, pouring system, get and riser system, etc., etc. So it is a very economical process. Welding require a very less capital investment to do a process, and welding is a very fast process compared to the casting, राइट। जब आप कास्टिंग करने जाते हो तो आपको फर्नेस को 1 या 2 दिन पहले उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर उसका मटेरियल को मेल्ट करना पड़ेगा, उसके जो हमारी प्रोडक्ट है उसको अकॉर्डिंग हमें मोल्ड डिजाइन करना पड़ेगा, उसका पैटर्न डिजाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ जो टाइम है ना, जो लीड टाइम है, जो प्रोडक्शन टाइम है, बहुत ज्यादा है in the casting. But in welding, just you have to prepare a weld joint, then set up the welding process and do a welding. So it is a very fast process. Fabricated mine structures are lighter as compared to cast one. It is a very important benefit because फैब्रिकेटेड जो स्ट्रक्चर होते हैं वो लाइटर होते हैं। क्यों लाइटर होते हैं? क्योंकि हम डिजाइन चेंजेस है, डिजाइन जो करते हैं बिल्डिंग स्ट्रक्चर की, वो एज पर द रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। लेकिन कास्टिंग में क्या है कि कास्टिंग में हमको उसका जो सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट मीन्स के जो वेट है वो कहाँ सपोर्ट करेगा, उसके लिए कौन सी वॉल डिजाइन की गई है,
और एंटायर मास कहाँ उसका जो कॉन्सेंट्रेट करेगा, वो सब हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जस्ट हमको मटेरियल को कट करना है और उसको ज्वाइन करना है, तो यहाँ हमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इन द डिजाइन। सो द फैब्रिकेटेड मास स्ट्रक्चर्स आर लाइटर compared to the cast ones. Fabricated mass structures have the more tensile strength and rigidity compared to the cast one. Again, it is related with the microstructure changes, right? क्योंकि आप प्री हीट ट्रीटमेंट करके आप करके डिजायर जो प्रॉपर्टीज है विल पार्ट्स की आप अचीव कर सकते हो। देन कोस्ट ऑफ पैटर्न्स एंड द स्टोरिंग इज एलिमिनेटेड। यहाँ कोई भी पैटर्न यूज नहीं होती, यहाँ कोई भी मोल्ड वेल्डिंग प्रोसेस में नहीं यूज होता, तो देयर इज नो एनी रिक्वायरमेंट ऑफ द पैटर्न्स, मोल्ड्स एंड द स्टोरिंग ऑफ द other resources. So it is a very important benefit of the welding process. As compared to casting, very fewer person are required in the welding process. Just you have to welding engineer, welding welder, then some helpers, then you can do a welding process. Structural shapes not easily obtainable with the casting can produce by the welding without much difficulty. Means आपने डिजाइन किया कास्टिंग प्रोडक्ट और आगे जाके आपको कुछ चेंज करना है, तो आप इजीली चेंज नहीं कर सकते हो, राइट? लेकिन इन फैब्रिकेशन और इन द वेल्डिंग प्रोसेस यू कैन चेंज द स्ट्रक्चर शेप इजीली। और इन द कास्टिंग देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ द शेप्स। आप जो प्रोडक्ट आपकी जो बनेगी उसमें जो शेप्स आएंगे, उसके जो कंटूर्स आएंगे, है ना, उसका जो अपीयरेंस आएगा वो लिमिटेड है। लेकिन आप वेल्डिंग प्रोसेस से आप एसिडिक कंडीशन या गुड लुकिंग वेल्ड स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। देन वेल्ड डिजाइन इन्वॉल्व्स अ लो कॉस्ट एंड इट इज वेरी फ्लेक्सिबल, राइट? मींस वेल्डिंग का स्ट्रक्चर आप ने डिजाइन किया तो इट्स रिक्वायर वेरी लो कॉस्ट, है ना, इट इज ऑल्सो वेरी फ्लेक्सिबल। एंड फैब्रिकेशन बाय वेल्डिंग सेव्स अ मशीनिंग कॉस्ट इन्वॉल्व इन द कास्ट पार्ट्स। मींस आप जब वेल्डिंग करते हो तो उसका फिनिशिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम होती है, आपको जस्ट ग्राइंडिंग ऑपरेशन ही करना पड़ता है फॉर द फाइनल फिनिशिंग ऑपरेशन। लेकिन जब आप कास्टिंग करते हो तो कास्टिंग में आपको मशीन जो अलाउंस दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग आपको मशीन करना पड़ेगा, क्योंकि जो सरफेस होगी वो बहुत रफ होगी, है ना। सरफेस ऑफ द कास्टिंग इज मच रफ देन द वेल्डेड स्ट्रक्चर और वेल्डेड पार्ट्स। Welding as compared to the riveting process. In the past, most of the bridges, ships, and the boilers are welded by the riveted, and nowadays, due to the advancement of the welding process, these all are welded by made by the welding process, because welding is a very economical process, faster process, right? And we can say that by using a welding, we can make a boiler more pressure tight than the riveted one, right? मीन्स जब हम वेल्डिंग प्रोसेस का इस्तेमाल यूज हम बॉयलर के लिए करेंगे तो हम जो प्रेशर टाइट की जो रिक्वायरमेंट है वो हमें ज्यादा मिलेगी कंपेयर टू द रिवेटिंग प्रोसेस, बिकॉज वी आर डूइंग अ कंटिन्यूअस सीम वेल्ड इन द सीट ऑफ द बॉयलर, राइट? एंड इन द रिवेटिंग देयर आर सम क्लियरेंस और सम गैप इन बिटवीन द टू जॉइंट्स। सो वेल्डिंग से हम ज्यादा प्रेशर टाइट बॉयलर या कुछ टैंक्स बना सकते हैं। रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ द वेल्ड मेटल एंड द एंटायर वेट ऑफ स्ट्रक्चर इज मच लेसर, लाइक मींस जो स्ट्रक्चर बनेगा वेल्डिंग से वो स्ट्रक्चर क्या होगा, लाइटर होगा कंपेयर टू द रिवेटिंग वन। क्यों होगा? क्योंकि बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग अ रिवेट, बिकॉज रिवेट ऑल्सो इट्सेल्फ कंसिडर वेट, वी आर नॉट using a cover plate, angle plate, so the weight of the overall weight of the structures are very less compared to the related structures. And no any additional requirement of the cover plates, connecting angles, gauges placed in the welding process. You have to just weld the parts. There is no any requirement of the cover plates or any other elements. Then you can get a better finish and appearance than the riveted structures, and many more benefits of the welding compared to the casting
and the revenue. That's why the welding nowadays are very popular, and the industry also require skilled persons, and there is a shortage nowadays. Nowadays there are the shortage of the skilled persons in the area of the welding. Now these are the general application of the welding process, like in the regular fabrication of the automobile, cars, aircrafts, refrigerators, and the ships. In these all areas, fabrication are very popular. Then the repair and the maintenance works. Then the few important applications like the aircraft constructions, right? Then the automobile constructions, bridges, then the building, then the preservation and the tanks, then the storage tanks, rail and the road equipments. Now, how can we classify welding process on the various phases? Right. So we can classify welding process depending on the sources of heat, then the depending on the application of the pressure, depending upon the different phases of the base and the filler material, then depending upon the composition of the heat, then the depending upon the position of the electrode, मीन्स हमने किस पोजीशन में इलेक्ट्रोड को यूज कर रहे हैं, वो 1G या 3G या 4G या 5G या 6 पोजीशन में यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई कर सकते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द मैकेनिज्म, मीन्स प्रोसेस ऑटोमेटिक है, मैनुअल है या पार्शियल ऑटोमेटिक है, उसके अकॉर्डिंग भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द सोर्सेज ऑफ हीट, क्योंकि आज का जो हम फोकस करने वाले हैं वो है आर्क वेल्डिंग, तो हम सोर्सेज ऑफ हीट के बेसिस पे किस तरह हम क्लासिफाई कर सकते हैं. नंबर वन इज आर्क वेल्डिंग. इन आर्क वेल्डिंग, आर्क is a heat source. In gas welding, a gas flame is acts as a heat source. In resistance welding, there is a resistance produced between the two parts. It acts as a heat source. And in the thermochemical welding process, due to the chemical reaction, there are the heat generation. And in the mechanical energy welding process, there are some mechanical forces like as a frictional forces or some by using the some vibratory motions, like in the ultrasonic welding, then the friction welding, right? And the radiant energy welding, in radiant energy welding, we can classify process in the like laser beam welding process, energy welding, electron beam welding process, right? In radiant energy, a laser beam act as a heat source, and in electron beam welding process, electron beam itself act as a heat source. हियर आप यहाँ आप फिगर में देख सकते हो, यहाँ इमेजेस है, देख सकते हो कि नंबर 1 जो ऊपर दी गई है फिगर, इसमें जो वेल्डर है वो आर्क वेल्डिंग कर रहा है ना, वहाँ आर्क का जनरेशन हो रहा है और वेल्डिंग हो रहा है. जो सेकंड 1 फिगर है राइट हैंड साइड, उसमें देखो आपके जो 2 सिलेंडर है और 2 सिलेंडर में से दोनों सिलेंडर में से जो गैसेस है, इधर एसिटिलीन, ऑक्सीजन और द हाइड्रोजन, दोनों का मिक्सिंग करके हम गैस फ्लेम को बनाते हैं, है ना, उसको इग्नाइट करते हैं और वेल्डिंग करते हैं. और जो नीचे दी गई है फिगर, इसमें रेजिस्टेंस वेल्डिंग का एग्जांपल दिया गया है कि हम क्या करते हैं कि सर्टेन लिमिट तक हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं दोनों पार्ट्स के जॉइंट के एरिया में, इसके जहाँ गैप है, और क्या करते हैं उसका रेजिस्टेंस जो जनरेट होगा उससे हीट जनरेशन होगा और वेल्ड जॉइंट बनेगा. Now, depending on the source of heat, we can further classify arc welding in a gas welding, in a resistance welding, and the thermochemical welding, mechanical energy welding, and the radiant energy welding. So, arc welding is a lots of welding process are there. More than 30 or 40 process are in the category of the arc welding, but we have selected some basic process or some fundamental process. Like as a carbon arc welding process. Carbon arc welding process, it is a very basic type of the welding process. In this welding, 2 carbon rods are there, and you have to do a welding process. Then manual metal arc welding process or a steel metal arc welding process, it is a very popular. If you want to learn welding,
then you have to start with the assembly process. Then the tungsten inert gas welding, it is also called as the TIG. Then the MIG welding, metal gas welding. Then the plasma arc welding, submerged arc welding, electron slag welding, electro glass welding. And in the category of the gas welding, there are the oxy-acetylene welding, air acetylene welding, oxy-hydrogen welding, and pressure gas welding. And in the resist welding, there are the, as per the type of the joint process are classified as butt welding, spot welding, seam welding, projection welding, and percussion, and the as test butt welding. And in the category of the thermochemical welding process is the thermite welding, and you know that the thermite welding are popular in the joining of the rails, right? Then atomic hydrogen welding. In the category of the mechanical energy welding, there are the friction welding, ultrasonic welding, diffusion welding, forge welding, roll welding, and the explosive welding. And in the category of the radiant energy, there are the electron beam welding and the laser beam welding process. मीन्स ये जो क्लासिफिकेशन है वो हीट सोर्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है कि आप किस टाइप का हीट सोर्स आप यूज कर रहे हो. आप आर्क एज ए हीट सोर्स यूज कर रहे हो तो वो आर्क वेल्डिंग हो गया, गैस यूज कर रहे हो तो आप वो गैस वेल्डिंग हो गया, रेजिस्टेंस का यूज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग हो गया. आप केमिकल रिएक्शन करके हीट का जनरेशन कर रहे हो ना, तो वो थर्मोकेमिकल वेल्डिंग हो गया. और आप कुछ मैकेनिकल फोर्सेस का यूज कर रहे हो फॉर ज्वाइनिंग द वर्क पीस, तो वो मैकेनिकल प्रोसेस, मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी वेल्डिंग प्रोसेस हो गया. और आप कुछ रेडिएशन यूज करते हो आइदर लेजर बीम और इलेक्ट्रॉन बीम, तो वो रेडिएट एनर्जी वेल्डिंग प्रोसेस कहा जाता है. देन द टाइप्स ऑफ वेल्ड जॉइंट, मीन्स आप किस टाइप का जॉइंट वेल्डिंग स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हो, राइट? So number one is a butt joint. You can see in the figure there are the various total number of the joints are there. The butt joints, and the T joints, lap joints, corner joints, and the edge joints. Here मैं यहाँ थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि जो हमें मेन जो टॉपिक कवर करना है वो सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ फास्ट जा रहा हूँ, राइट? क्योंकि हमें आर्क वेल्डिंग का प्रिंसिपल क्या है वो समझना है. तो these आर द टाइप्स ऑफ द वेल्ड जॉइंट्स. हाँ, it is a very important welding position. It is a very important for you because it is generally asked in the competitive exams as well as the interview. So here welding positions are classified as a flat position, horizontal positions, vertical position, and the overhead position. Means जो वेल्डिंग पोजीशन है आप वो फ्लैट पोजीशन में जो वेल्डिंग पोजीशन है वो 4 कैटेगरी में क्लासिफाई की जाती है. आइदर इट फ्लैट पोजीशन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ओवरहेड पोजीशन. और यहाँ जो एफ जो वर्ड यूज किया गया है वो फिलेट के लिए यूज किया गया है, और जी है वो जी ग्रूव वेल्ड के लिए यूज किया गया है, राइट? मीन्स एफ फॉर द फिलेट एंड द जी फॉर द ग्रूव. जब हम कोई प्लेट का वेल्डिंग करते हैं तो हम दोनों टाइप का जॉइंट बना सकते हैं. आइदर वी कैन यूज ग्रूव वेल्ड और वी कैन यूज अ फिलेट वेल्ड. लेकिन जब हम पाइप का वेल्डिंग करेंगे तो वी हैव टू यूज ओनली अ ग्रूव वेल्ड. तो लेट्स सी द व्हाट इज द 1F, 2F एंड द 3G, 4G, 5G. तो सी हियर 1F मींस 1F में क्या है कि जो वेल पार्ट्स है उसका वेल पार्ट्स है, इसमें हमारा जो वेल जॉइंट होगा वो फ्लैट पोजीशन में होगा. मींस जो हमारा वेल का एक्सिस होगा, वेल का एक्सिस वो 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री टू द ग्राउंड होगा. मींस के 45 डिग्री का एंगल बनाएगा ग्राउंड के साथ. और जो हमें इसमें जो वेल्डिंग करना है उसको बोलेंगे हम फ्लैट पोजीशन, राइट? इट इज अ वेरी सिंपल टाइप ऑफ वेल्डिंग जॉइंट. मींस जब हम वेल्डिंग सीखते हैं या सीखना स्टार्ट करते हैं तो हम फ्लैट पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ हमें क्लियरली जो जॉइंट है वो दिखता है और हम इजीली जो वेल्डिंग प्रोसेस है वो कंट्रोल कर सकते हैं. सेकंड है 2F. 2F में क्या है कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन. मींस जो हमारे एक्सिस ऑफ द वेल्ड है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहेगी और हमें वेल्ड करना है, उसको बोलेंगे 2F. मींस फिलेट वेल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन. थर्ड वन इज 3F मींस वर्टिकल पोजीशन. यहाँ हमारा जो पार्ट्स होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ फिगर में टी जॉइंट का एग्जांपल दिया है. मींस यहाँ देखो
कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेट है, दूसरी वर्टिकल प्लेट है, लेकिन जो एक्सिस ऑफ द वेल बीड है, एक्सिस ऑफ द वेल बीड वो क्या है, वर्टिकल है। तो यहाँ हमें ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर यहाँ हमें वेल्डिंग करना पड़ेगा। सो कंपेयर टू द 1F एंड द 2F, the vertical position is a very difficult, because here the wheel joint in a vertical direction, so the you have to control the molten material to fall, है ना। मीन्स कि यहाँ जो मटेरियल जो मेल्ट होगा वेल्डिंग के दरमियान, उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा कि ज्यादा मटेरियल नीचे गिर ना जाए और हमारा जो वेल जॉइंट बिगड़ ना जाए, इसलिए ये थोड़ी डिफिकल्ट पोजीशन रहती है। 4F क्या है, ओवरहेड पोजीशन। इट इज अ मोर डिफिकल्ट टू द वर्टिकल पोजीशन, मीन्स कि हमारा जो व्हील पार्ट है उसके नीचे हमें वेल्डिंग करना है, राइट। वी हैव टू वेल्ड बिलो द वर्क पीस, नीचे वेल्डिंग करना है। तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन टू फॉर द वेल्डर टू वेल्ड अ पार्ट्स। सिमिलरली प्लेट के लिए 1G 2G 3G और 4G सेम है, जिस तरह मैंने 1F 2F 3F और 4F आपको बताया। लेकिन यहाँ पाइप वेल्डिंग में थोड़ा यहाँ डिफरेंस है, राइट। क्योंकि पाइप में क्या होता है कि वो सर्कुलर शेप या सिलिंड्रिकल शेप या सर्कुलर शेप में जो होता है, इसमें क्या होता है कि आपको क्या करना पड़ता है कि आइदर अ वेल्डर रोटेट और द पाइप itself रोटेट। मीन्स हम पाइप को रोटेट कर सकते हैं या वेल्डर को रोटेट कर सकते हैं वेल्डिंग जॉइंट बनाने के लिए। तो जो 1G पोजीशन है, 1G पोजीशन, इसमें क्या है कि वेल्डर है जो वो फिक्स पोजीशन में रहता है, वो स्टेशनरी रहता है, स्टेशनरी रहता है। और पाइप को हम इक्वल टाइम इंटरवल में क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। ये जो पोजीशन है वो 1G बोलते हैं उसको। 2G में क्या है कि हमारा जो पाइप है वो वर्टिकली है, वर्टिकल है, लेकिन जो हमें वेल्ड करना है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन करना है। इसको हमें जो वेल्ड करना है ये हॉरिजॉन्टली ऑल अराउंड द पाइप करना है, तो उसको 2G बोलते हैं। और पाइप में है 5G। 5G में क्या है कि 5G और 6G में क्या है कि हम पाइप को रोटेट नहीं कर रहे हैं, पाइप हमारा स्टेशनरी है और वेल्डर को हम यहाँ रोटेट कर रहे हैं। ये 5G और 6G पोजीशन कहाँ ज्यादातर यूज होगी, तो फॉर एग्जांपल कोई ONGC का प्लांट है या कुछ पाइपलाइन का स्ट्रक्चर या कुछ प्रोसेसिंग प्लांट है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारी ऐसे पाइपलाइन वो बिछाई जाती है, इंस्टॉल की जाती है। तो यहाँ हम पाइप को निकाल नहीं सकते, है ना। मीन्स को पाइप वहाँ स्टेशनरी रहती है, वो हम उसको निकाल नहीं सकते फॉर द वेल्डिंग प्रोसेस और टू डू अ वेल्डिंग जॉइंट, हम उसको निकाल नहीं सकते, वो हमारी लिमिटेशन। तो यहाँ कंपल्सरी व्हील को क्या करना पड़ेगा, जॉइंट के अकॉर्डिंग उसको रोटेट करना पड़ेगा, उसको घूमना पड़ेगा पाइप के ऑल अराउंड, है ना, और घूमना पड़ेगा। तो ये हुआ 5G पोजीशन। 6G पोजीशन में क्या है कि हमारा जो ये पाइप है वो 49 डिग्री इंक्लाइन है, इसको 40 डिग्री का एंगल बनाता है ग्राउंड से, और इसमें भी वेल्डर को रोटेट होना है और पाइप फिक्स होती है। और ये सभी पोजीशन में 1F हो या 2F हो या 4G हो, 2G हो, 5G हो, इसमें से जो डिफिकल्ट पोजीशन है वो है 6G और 5G, राइट। क्योंकि इसमें 5G और 6G में क्या होता है कि वेल्डर को यहाँ रोटेट होना है। जब पाइप बड़ी होती है या कुछ ज्यादा डायमीटर की होती है, तो यहाँ ये जो काम है बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वेल्डिंग इज अ आर्ट, है ना। आप समझ रहे हो कि वेल्डिंग इज अ आर्ट, इट इज रिक्वायर द मोर स्किल। तो 5G और 6G थोड़ा डिफिकल्ट है। और ये जो पोजीशन है, पोजीशन ऑल्सो इंडिकेट्स द स्किल ऑफ द वेल्डर। मीन्स ये जो 5G 6G आपने सुना होगा कि ये 5G ट्रेंड और 5G स्किल्ड वेल्डर है, और मार्केट में 5G और 6G वेल्डर की बहुत रिक्वायरमेंट है, राइट। क्योंकि इसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत ही एक्सपीरियंस चाहिए, और आपको यहाँ हॉरिजॉन्टल भी वेल्डिंग करना पड़ेगा, वर्टिकल करना पड़ेगा, आपको मोल्टन पूल है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, राइट। तो ये 5G और 6G जो पोजीशन है वो बहुत ही डिफिकल्ट रहती है। These all are the shapes of the different weld joints, the butt joints, fillets, and the compounds. If you use the butt and the fillet, then it becomes a compound joint.
then the spot welds, plug joints and the edge, है ना. हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जॉइंट का शेप डिजाइन कर सकते हैं. then these all are the टी जॉइंट्स, है ना. टी जॉइंट है, इसमें आप फिलेट कर सकते हो, बट का यूज कर सकते हो एंड कॉम्बाइन भी कर सकते हो आप. देन द कॉर्नर जॉइंट्स, कॉर्नर जॉइंट में भी आप बट का इस्तेमाल कर सकते हो, फिलेट का इस्तेमाल कर सकते हो. देन द कंपाउंड वन, you can also a double fillet, right. These are the corner joints. It is a lap joints, you can use a fillet, spot or the compound in the lap joints. Yes, this is the shielded metal arc welding process. यहाँ मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि how many students are really experience the welding process, either in a college, either in the outside the college, right? Please write in the chat box and give the answers. Have you really experienced the welding process, or have you performed the welding process? So and you know that in the online session there are the limited interactions, and I can say that there is the zero interactions between the audience and the speaker. So it makes a very difficult for the speaker for the what the requirement of the audience. So okay, anyway, in a shielded metal arc welding, this shielded metal arc welding in also called as the SMW. This process also called as a manual metal arc welding process. This process also known as a stick welding process. Why it is called the stick welding? Because we are using a electrode in the form of stick. That's why it is called as the stick welding process. Why it is called the shielded metal arc welding? Because we are using a flux material, so all the molten pool is shielded by the flux material. So by using the flux, we are protecting the molten pool. So it is called the shielded. Why it is called the manual metal arc welding process? Because these processes are performed manually, right? That's why it is called as the manual metal arc welding process. तो यहाँ आप देख सकते हो कि किस तरह उसका सेटअप होता है सीरियल मेटल आर्क वेल्डिंग में. तो these are the various elements or setups of the serial metal arc welding process. There is a power source. There are the two terminals comes from the machines, is a negative terminal and the positive terminal. मीन्स ये जो सेटअप है वो पूरा सीरियल मेटल आर्क वेल्डिंग का है. वेल्डिंग मशीन में से दो केबल्स, दो टर्मिनल निकलते हैं. अगर आप एसी वेल्डिंग करते हो तो यहाँ कोई भी साइन इस्तेमाल नहीं होती है, पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन, बिकॉज यू नो दैट इन अल्टरनेटिंग करंट द पोलैरिटी चेंजेस 100 टाइम पर सेकंड. so there is no any indication in the AC type welding power source. But if you use a DC power source, there is a specific indication of the plus sign and the minus signs, and you have to decide the polarity based on your requirement. In subsequent slide, I will share some basic information about the polarity, right? So here you can see that यहाँ आप देख सकते हो कि वेल्डिंग मशीन में से एक जो टर्मिनल है वो हमने इलेक्ट्रोड होल्डर को दिया है, और दूसरा टर्मिनल जो है उसको हमने दिया है वर्कपीस को, राइट. तो ये पूरा कंप्लीट सेटअप है. आप वेल्डिंग करने के लिए आप टेबल भी यूज कर सकते हो या फिक्सर भी यूज कर सकते हो. यहाँ टेबल की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि आप टेबल का यूज करके आप जो वर्कपीस का जो अलाइनमेंट है, इसको दो प्लेट का जो अलाइनमेंट है आप इजिली बना सकते हो, और जो माउंटिंग्स है और जो फिक्सर है आप इजीली उसमें माउंट कर सकते हो टेबल के ऊपर, इसलिए यहाँ टेबल की भी रिक्वायरमेंट होती है. ओके, दिस इज ऑल आर द सेटअप ऑफ द shielded metal arc welding process. and shielded metal arc welding process are widely used. है ना, आप जब कुछ फैब्रिकेशन शॉप पे जाओगे या कुछ रिपेयरिंग शॉप पे जाओगे या कुछ मेंटेनेंस शॉप पे जाओगे, डेफिनेटली वहाँ दो मशीन, दो वेल्डिंग प्रोसेस होगी. एक होगी ये shielded metal arc welding प्रोसेस और दूसरी होगी गैस वेल्डिंग प्रोसेस.
सीलिंग वेल्डिंग प्रोसेस जब आप थिकर प्लेट्स का वेल्डिंग करना है तहाँ आप यूज करेंगे, और जब गैस वेल्डिंग प्रोसेस है जब आपको शीट मेटल का वेल्डिंग करना है तहाँ वहां यूज करना पड़ेगा गैस वेल्डिंग प्रोसेस को। हाँ, दिस इज द प्रिंसिपल हाउ आर्क इज means this figure shows the how arc is generated and how the molten pool is generated and how slag is formation means ये फिगर शोज करती है कि किस तरह इलेक्ट्रोड का मेल्टिंग होता है, वर्कपीस का मेल्टिंग होता है, और किस तरह जो मोल्टन पूल है उसके ऊपर स्लैग का फॉर्मेशन होता है। तो उसके पहले हम देखते हैं कि किस तरह वेल्डिंग किया जाता है। तो मैंने आपको पहले बताया कि बिफोर डूइंग एक्चुअल वेल्डिंग प्रोसेस यू हैव टू सेट अप द वेल्डिंग प्रोसेस। इसको आपको प्रोसेस को पूरी तरह सेटअप करना है। किस तरह सेटअप करना है कि वेल्डिंग मशीन में से जो दो टर्मिनल निकलते हैं उसमें से एक टर्मिनल आपको इलेक्ट्रोड होल्डर को देना है, दूसरा टर्मिनल आपको वर्कपीस को देना है। और आपको क्या करना है कि मेन स्विच को ऑन करना है। तो कैसे हम आर्क को पहले डिफाइन करते हैं? तो आर्क इज अ सस्टेनेबल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज टू द आयोनाइज्ड गैस, मींस इट इज नथिंग बट अ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू अ कंडक्टिव मीडियम लाइक एज आयोनाइज्ड गैस, है ना। इसे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, आयंस है, उसकी जो मूवमेंट है उसको हम बोलते हैं आर्क्स। तो हाउ आर्क इज जनरेटेड इन द आर्क वेल्डिंग प्रोसेस? तो पहले हम कोई भी वेल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं कि हम जो इलेक्ट्रोड होल्डर है उसको हाथ में पकड़ते हैं और हमारा जो वर्कपीस है वो हमारे सामने होता है। तो पहले हम क्या करेंगे कि वेल्डिंग पावर सोर्स है, जो पावर सोर्स है उसका स्विच ऑन करेंगे। जैसे ही पावर स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास होगी इन अ इलेक्ट्रोड होल्डर, इसके जो भी टर्मिनल है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास होगी तो इससे क्या होता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है किसकी, एटम्स की और मॉलिक्यूल्स की, वो कम होगी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ जाएगी। मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गोज टू हाई देन द पोटेंशियल ऑफ द एटम्स। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो आयोनाइजेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। और ये आयोनाइजेशन प्रोसेस क्या है? इज नथिंग बट द स्प्लिटिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द एटम्स इन अ नेगेटिव आयंस एंड द पॉजिटिव आयंस, है ना। मींस जब हम वेल्डिंग करते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रोड है उसको क्या करते हैं, स्क्रैच करते हैं। किसके ऊपर? वर्कपीस के ऊपर। स्क्रैच करके हम क्या कर रहे हैं, उसको थोड़ा ऊपर ले रहे हैं, है ना। मींस हम गैप मेंटेन कर रहे हैं 1.5 टू 3 mm गैप हम मेंटेन करें। जैसे ही हम गैप मेंटेन करेंगे तो क्या होगा, वहां आयोनाइजेशन प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाएगा। मींस जो एयर का जो मॉलिक्यूल्स है, जो एटम्स है, वो स्प्लिट होगा। किसमें स्प्लिट होगा? नेगेटिव आयंस एंड द पॉजिटिव आयंस। मींस का यहाँ और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बढ़ जाएगा, राइट। और यहाँ इंटर पार्टिकल कोलिजन भी स्टार्ट होगा, जिससे क्या होगा कि टेम्परेचर राइज होगा। जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा तो क्या होगा, जो हमारा ब्रिज बना हुआ है इसका इलेक्ट्रोड और वर्कपीस का, वो बॉयल होने लगेगा। क्या होगा? बॉयल होने लगेगा। और जैसे ये टेम्परेचर राइज होगा तो यहाँ एक कंडक्टिंग मीडियम, है ना, वी कॉल इट इज प्लाज्मा, एक प्लाज्मा चैनल और एक आर्क कॉलम एस्टैब्लिश होगा बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द वर्कपीस। एंड दिस प्लाज्मा and this arc column act as a conducting medium। तो कंटिन्यूअसली यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चलता रहेगा और हमें कंटिन्यूअसली हीट मिलती रहेगी, हमारा वर्कपीस जो है वो मेल्ट होता रहेगा। लेकिन यहाँ जब तक आप गैप मेंटेन रखेंगे तब तक ही आप ये सब ये जो हीट जनरेशन है वो कर पाओगे। जैसे ही आप गैप इंक्रीज करते हो या डिक्रीज करते हो तो वहाँ हीट जनरेशन में भी वेरिएशन आ सकता है, राइट। तो इस तरह आप आग जनरेट कर सकते हो, राइट। फिर से मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ कि कैसे आग जनरेट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया कि हाथ में आपने इलेक्ट्रोड होल्डर को पकड़ा, आपके सामने वर्कपीस है, आपने इलेक्ट्रोड को क्या किया, स्क्रैच किया वर्कपीस से और थोड़ा ऊपर उठा लिया। जैसे ही आप ऊपर उठाओगे तो क्या होता है कि आयोनाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, राइट। जैसे ही आयोनाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो बढ़ जाएगा।
और इंटर पार्टिकल कोलिजन की वजह से क्या होगा कि यहाँ टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगा कि एक चैनल और एक प्लाज्मा चैनल है वो एस्टेब्लिश होगा बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द वर्कपीस, और वो जो चैनल है वो एक क्या करेगा, एज अ वर्क करेगा कंडक्टिंग मीडियम। तो कंटिन्यूअसली यहाँ आपको इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से यहाँ आपको हीटिंग इफेक्ट मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप जो गैप है कॉन्टेक्ट टू वर्कपीस डिस्टेंस है वो आप ब्रेक करते हो या कम करते हो या ज्यादा करते हो, तो हमारा जो वो चैनल है जो जनरेट हुआ है वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि जब हम वेल्डिंग करें तो ऑप्टिमम आर्क लेंथ या कॉन्टेक्ट टू वर्कपीस डिस्टेंस जो है वो मेंटेन रखे, जिससे हमें मैक्सिमम हीट जनरेशन मिले और हम हमारा जो एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस का वो ज्यादा मिले। इसलिए हमें यहाँ ऑप्टिमम डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है। देन टाइप्स ऑफ द आर्क, द स्टेडी आर्क, अनस्टेडी आर्क्स मीन्स जो स्टेडी आर्क है वो जनरली अवेलेबल इन अ डीसी टाइप ऑफ मशीन पावर सोर्स। मीन्स जब हम डीसी वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ हमें कौन सा आर्क मिलेगा, स्टेडी टाइप का आर्क मिलेगा, क्योंकि वहाँ कोई भी साइन जो पोलैरिटी वो चेंज नहीं होती, कंटिन्यूअसली फ्लो फ्रॉम द वन डायरेक्शन टू द अनदर डायरेक्शन, कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है ना, इन अ वन डायरेक्शन। अनस्टेडी फ्लो क्या है, वो जब शॉर्ट सर्किट टाइप का हम शॉर्ट सर्किट टाइप का वेल्डिंग करेंगे है ना, तो इसमें क्या होगा, हमें अनस्टेडी आर्क मिलेगा। कंटिन्यूअस अनस्टेडी जब हम एसी वेल्डिंग करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट का पावर सोर्स का यूज करेंगे तो हमें कॉन्स्टेंटली अनस्टेडी हमें आर्क मिलेगा। एंड द पल्स आर्क, इट इज अ पल्स आर्क इसमें किसमें मिलेगा कि जब हम वेल्डिंग पावर्स को ऐसे ही डिजाइन किया गया है कि हम करंट को एक लिमिट तक ले जाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, ग्रेजुअली रेस्ट्रिक्ट चैन लाते हैं, इसमें सडनली चैन लाते हैं, तो उस टाइप का हमें पल्स आर्क मिलेगा। एंड देयर आर द वेरियस मेथड्स टू इनिशिएट द आर्क। मैंने आपको यहाँ एक मेथड बताई कि आप स्क्रैच करके आप ऊपर उठाओगे तो यहाँ आर्क जनरेशन होगा, लेकिन सम स्पेसिफिक प्रोसेस रिक्वायर some specific method to generate arc. For example, in steel metal arc welding, क्या होता है, वो मैनुअल प्रोसेस है, तो आप वहाँ स्केचिंग करके आर्क जनरेट कर सकते हो। लेकिन सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में जाओगे तो वहाँ वो जो प्रोसेस है वो टोटली ऑटोमेशन पे है, इसका टोटली जो प्रोसेस है इन द ऑटोमेटिक मोड, तो वहाँ आप स्क्रैच नहीं कर सकते। वहां आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्टील वूल रखना पड़ेगा इन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड द वर्कपीस, राइट। और आप स्टील वूल को हटा के वहां आर्क जनरेट कर सकते हो बाय द कार्बन रोड, बाय द हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट। ये मेथड का यूज करके आप आर्क जनरेट कर सकते हो। फंक्शन ऑफ द फ्लक्स, राइट। यहाँ आप फिगर में देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रोड है उसका कवरिंग किया गया है किससे, फ्लक्स मटेरियल से। फ्लक्स जो मटेरियल है वो ऑक्सीडाइजिंग डीऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट से बना हुआ है, मीन्स के जैसे ही वो हीट के कांटेक्ट में आएगा तो इसका क्या होगा, डीऑक्सीडेशन होगा, है ना, वो बर्न हो जाएगा, है ना। तो फ्लक्स का क्या काम है, जनरली फ्लक्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द मोल्टन पूल। इट ऑल्सो हेल्प्स in to reignite the arc. Why reignite the arc? Because if we use AC power source, तो AC पावर सोर्स में क्या होता है कि जो हमारा पोलैरिटी है वो चेंज होता है ना, 100% पर टाइम, मीन्स का 50 टाइम्स वो इग्नाइट हुआ, 50 टाइम्स वो एक्सटिंग्यूश हुआ। तो यहाँ जो फ्लक्स मटेरियल है वो हेल्प करेगा रीइग्निशन में, राइट। और जब हम वेल्डिंग करते हैं तो हीट की वजह से क्या होता है कि हमारा जो वेल्ड मटेरियल है वो क्या होगा, मोल्टन स्टेट में जाएगा, और मोल्टन स्टेट में जाएगा तो यहाँ देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पॉसिबिलिटी है कि ऑक्सीडेशन, यहाँ जो हमारा मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्ट कर सकता है और हमारा जो वेल्ड सरफेस है उसको वीक कर सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, हमारे वेल्ड मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ फ्लक्स मटेरियल यूज कर रहे हैं। जैसे ही हीट जनरेशन होगा और मटेरियल मेल्ट होगा तो वो जो फ्लक्स मटेरियल है वो बर्न होगा,
और क्या होगा, फ्लोट करेगा मोल्टन पुल पे, राइट, और पूरे जो एरिया है वेल्ड जॉइंट का उसको कवर कर लेगा। और फ्लक्स मटेरियल इज अ लाइटर इन वेट देन द वेल्ड मटेरियल, तो वो फ्लोट करता है। और जैसे ये वेल्ड मेटल सॉलिडिफाई होता है तो वो क्या होता है कि उसके ऊपर एक लेयर बना देता है, एंड दिस लेयर इज कॉल्ड एज द स्लैग। एंड दिस स्लैग इस स्लैग को हम बाय यूजिंग वायर ब्रश और द चिपिंग हैमर वी कैन इजीली रिमूव। मींस ये जो स्लैग फॉर्मेशन होता है वो वेल्ड जो पूल है, जो मोल्टन मेटल है, उसको प्रिवेंट करने के लिए बनता है, राइट। और जब हम वेल्डिंग प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो एक स्लैग फॉर्मेशन आ जाएगा इसके ऊपर, एंड दिस स्लैग ये जो स्लैग है वी कैन इजीली रिमूव, है ना। आपने देखा होगा जब कोई वेल्डर वेल्डिंग करता है तो वेल्डिंग करने के बाद क्या करता है, वो चिपिंग हैमर से क्या करता है, उसके ऊपर, है ना, स्ट्राइक करता है, हैमरिंग करता है ना। तो इससे क्या होता है कि जो स्लैग फॉर्मेशन है वो निकल जाएगा और आपका जो वेल्ड जॉइंट है उसका अपीयरेंस, उसका जो अपीयरेंस है वो आपको दिखने लगा कि किस तरह का जॉइंट बना है। हाँ, अगर आप आर्क वेल्डिंग की प्रैक्टिस करते हो तो आपको बेसिक जो इलेक्ट्रिकल टर्म्स है वो आपको सीखनी पड़ेगी, आपको उसका नॉलेज लेना पड़ेगा, है ना। इज द बेसिक टर्म्स, इज द वोल्टेज, इट इज जस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इट इज मेजर्ड इन द वोल्ट्स, and the currents is the movements of the charge particles specific in the directions, it is measured in the amperes, and the duty cycles and rated voltage and the current. These two parameters are used for the selection of the welding power source for the specific welding process. Means ये जो ड्यूटी साइकिल है और जो रेटेड वोल्टेज और करंट है, इट इज अ पैरामीटर, है ना। ये जो दो है वो पैरामीटर है कि जब हमको कोई पावर सोर्स सिलेक्ट करना है वेल्डिंग प्रोसेस के लिए, तो यहाँ हमें पता चल जाएगा कि हमें किस टाइप का वेल्डिंग करना है, हमें कंटिन्यूअस वेल्डिंग करना है, हमें किस टाइप का ज्वाइंट करना है, हमें कितनी हमारा जो मटेरियल वेल्ड करना है वो किस मटेरियल का है, हमारा जो ज्वाइंट है वो किस मटेरियल से बना हुआ है, या हमारा जो बेस मेटल है वो किस टाइप का मटेरियल है। इस तो यहाँ ड्यूटी साइकिल है, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पैरामीटर टू सिलेक्ट द पावर सोर्स। तो ड्यूटी साइकिल क्या है, इट इज अ रेशियो ऑफ द आर्क टाइम टू द वेल्ड साइकिल टाइम, है ना। इट इज मेजर्ड इन अ परसेंटेज। यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है कि 30% एट 200 एम्पियर मीन्स 30% एट 2 एम्पियर मीन्स इसका मीनिंग क्या है कि आप 200 एम्पियर का करंट यूज करके आप वेल्डिंग प्रोसेस कर सकती हो फॉर द 3 मिनट्स आउट ऑफ द 10 मिनट्स, राइट। यहाँ मैंने जो वेल्डिंग साइकिल टाइम्स है वो एज पर द यूरोपियन स्टैंडर्ड कितना है, 5 टाइम्स है, और अमेरिकन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो वेल्डिंग साइकिल टाइम है वो 10 मिनट्स है। अगर हम अमेरिकन स्टैंडर्ड का यूज करें तो हम 30% या 200 एम्पियर का मीनिंग क्या निकाल सकते हैं कि हम वेल्डिंग मशीन को 200 एम्पियर का करंट यूज करके कितने टाइम तक में यूज कर सकते हैं, 3 मिनट्स आउट ऑफ द 10 मिनट्स विदाउट एनी डैमेजेस ऑफ द पावर सोर्स और विदाउट एनी डैमेज इन द इंसुलेशन ऑफ द वायर्स, राइट। मीन्स कोई भी डैमेजेस नहीं होगा, नहीं इंसुलेंस का कोई प्रॉब्लम ना आएगा, नहीं कोई मशीनरी में शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम आएगा, है ना। तो हम इजीली सेफली इतना करंट क्या करेंगे, हम यूज कर सकते हैं। Then the rotated voltage and the current, तो ये भी एक पैरामीटर है फॉर द सिलेक्शन ऑफ द वेल्डिंग पावर सोर्स। मींस कि ये जो वेल्डिंग पावर सोर्स है वो कितने वोल्टेज और करंट पे डिजाइन किया गया है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना सेफर है। Then the power source characteristic, it is a very important for the selection of the power source, है ना। ये भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इम्पोर्टेंट पैरामीटर है कि हमारा जो वेल्डिंग पावर सोर्स है वो कांस्टेंट करंट है या कांस्टेंट वोल्टेज है। तो कांस्टेंट करंट पावर सोर्सेस क्या है कि जब वोल्टेज का वेरिएशन होगा, वोल्टेज जब हम वेरी करेंगे तो करंट का वेरिएशन क्या होगा, बहुत ही कम होगा, राइट। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि फॉर एग्जांपल हम सिंगल मेटल आर्क वेल्डिंग का एग्जांपल ले तो हम क्या करते हैं कि जब हम वेल्डिंग करते हैं, है ना, आर्क जनरेट के लिए क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोड को स्क्रैच कर देते हैं वर्कपीस के ऊपर और थोड़ा ऊपर उठाते हैं,
और वेल्डिंग के दरमियान जो हमारी हैंड की मूवमेंट है वो क्या होती है, वाइब्रेट होती है, उसका सीवरिंग एक्शन होता है ना, हाई हैंड जो सीवर करता है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो वोल्टेज भी है वो भी वेरी करता है, मीन्स जो कॉन्टेक्ट टू वर्कपीस डिस्टेंस है वो भी वेरी करता है। और जो ये जो आर्क डिस्टेंस है उसको हम वोल्टेज भी बोलते हैं, कि भाई वोल्टेज बोल सकते हैं, आर्क लेंथ बोल सकते हैं। तो ये जो वेरिएशन है वोल्टेज में वो कंटिन्यूसली होता रहता है, लेकिन ये हमें क्या चाहिए, हमें कॉन्स्टेंटली हीटिंग चाहिए। लेकिन यहाँ जब आप वोल्टेज में चेंज करेंगे तो डेफिनेटली करंट में भी चेंज आएगा। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए, करंट का जो वेरिएशन है उसको मिनिमाइज करने के लिए हम पावर सोर्स ही ऐसा डिजाइन करते हैं जो कांस्टेंट करंट की कैरेक्टरिस्टिक दे सके, राइट। इसलिए जनरली जो कांस्टेंट करंट पावर सोर्स है या कांस्टेंट करंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जनरली मैनुअल वेल्डिंग पावर सोर्सेज में होता है, लाइक सीरियल मेटल आर्क वेल्डिंग, टंगस्टन गैस वेल्डिंग एंड द कैटेगरी ऑफ द नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स। मींस जब आप नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हो तब आप कांस्टेंट करंट पावर सोर्स यूज कर सकते हो, है ना। देयर आर द वेरियस ऑप्शंस इन द कांस्टेंट करंट पावर सोर्सेस। then the category like a constant voltage, है ना। constant voltage का मीनिंग क्या है कि there is a minimum change in voltage, there is a minimum change in the voltage, means जब वोल्टेज का जो चेंज है वो मिनिमम होगा और करंट का वेरिएशन क्या होगा हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन ऑटोमेटिक प्रोसेस में क्या होता है कि हमारा जो कॉन्टेक्ट टू वर्कपीस डिस्टेंस है वो क्या होता है, सेम होता है, मीन्स के इक्वल अमाउंट पे रहता है, पूरी एंटायर द प्रोसेस क्या होता है वो सेम रहता है। लेकिन लेकिन क्या होता है कि पावर जो सप्लाई है, इवन हम घर में भी देखते हैं कि पावर का जो फ्लक्चुएशन है वो होता रहता है ना, वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता रहता है। तो ऑटोमेटिक प्रोसेस में हम डायरेक्टली जो वोल्टेज है उसको 100% हम कांस्टेंट नहीं कर सके, थोड़ा तो वेरिएशन रहेगा, 2 to 5 वोल्टेज का जो वेरिएशन है वो रहेगा। लेकिन जो इससे ज्यादा जो वोल्टेज का वेरिएशन आएगा तो क्या होगा कि हमारा जो हीटिंग है वो भी बढ़ जाएगा और कम हो जाएगा। और ये जो हीटिंग ज्यादा होने की वजह से या कम होने की वजह से क्या होगा, हमारा जो वेल सरफेस है वो बर्न हो सकता है या स्पॉइल भी हो सकता है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि ऑटोमेटिक प्रोसेस में हमारा जो पावर सोर्स है वो कांस्टेंट वोल्टेज पावर कैरेक्टरिस्टिक वाला पावर सोर्स हम यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि ऐसे भी कोई रीजन से कुछ पावर सोर्स में फ्लक्चुएशन आता है तो वोल्टेज के हिसाब से, है ना, जितनी आर गैप है, जितनी डिस्टेंस है उसके हिसाब से क्या होगा हीटिंग, इसके हिसाब से क्या होगा करंट सेट होगा, और जितना करंट होगा उतनी हीटिंग आपको मिलेगी। और जो वेल्डिंग होगा वो कंटिन्यूअसली होमोजेनियस वेल्डिंग होगा, एक होमोजेनियस टाइप का वेल्डिंग, इसको जो बिल्ड मिलेगी वो आपको होमोजेनियस टाइप की मिलेगी, राइट। दूसरा क्या है कि पोलैरिटी। पोलैरिटी जनरली क्या है कि आपको इलेक्ट्रोड को मेल्ट करना है या वर्कपीस को मेल्ट करना है, दोनों में से आपको इसको मेल्ट करना है ना। जनरली जो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स होते हैं इसमें हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि हमें इलेक्ट्रोड को मेल्ट करना होता है, और जो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होते हैं इसमें हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि हम वर्कपीस को ज्यादा हीट दे और कम हीट हम इलेक्ट्रोड को दे। तो ये जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम पोलैरिटी का सिलेक्शन करते हैं। तो यहाँ टोटल 3 पोलैरिटी हम बोल सकते हैं कि 3 पोलैरिटी हम वेल्डिंग प्रोसेस में यूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, राइट। द फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। तो डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव में क्या होता है, पहले तो मैं उसका सेटअप बता देता हूँ कि किस तरह यूज होता है। यहाँ इलेक्ट्रोड नेगेटिव मीन्स तो जो नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव पर्टिकुलर इन द डीसी वेल्डिंग, राइट, देयर इज नो एनी पोलैरिटी इन द एसी वेल्डिंग, राइट, इट इज बेसिकली इन द डीसी टाइप। तो डीसी ईएन मींस इलेक्ट्रोनेगेटिव में क्या होता है कि जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हम इलेक्ट्रोड को देंगे और पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो हम वर्कपीस पे देंगे। और जहां हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होगा वहां हमारा 2/3 जो हीट है, नियर टू 70% हीट है, वो वर्कपीस के साइड जनरेट होगी, और जो रिमेनिंग 70% जो हीट है वो इलेक्ट्रोड की साइड जनरेट होगी। मीन्स कि यहाँ हम ज्यादा हीट किसको दे रहे हैं डीसीएन पोलैरिटी में, वर्कपीस को, और ज्यादा हीट दे रहे हैं इलेक्ट्रोड को।
लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट थोड़ी चेंज होती है कि हम फिलर मटेरियल का यूज कर रहे हैं, हमें ज्यादा डिपोजिट मटेरियल वेल जॉइंट में करना है, तो हम अगेन डीसीईपी जो हमारी पोलैरिटी है वो यूज करेंगे। इसमें क्या होगा, जो इलेक्टेड है वो हमारा पॉजिटिव होगा और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो वर्कपीस साइड होगा। इससे क्या होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो ज्यादा हीट का जो जनरेशन है वो इलेक्ट्रोड के साइड ज्यादा होगा, मीन्स नियर टू 70% हीट एट द electrode side and the remaining 30% heat at the workpiece side. And in the alternating current, there is no any polarity because we know that in alternating current the polarity changes 100 time per seconds, right? So here यहाँ आप फिगर में भी देख सकते हो कि DCN में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो इलेक्ट्रॉन टू वर्कपीस की साइड है, राइट। और डीसीबी में क्या है कि इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो वर्कपीस टू इलेक्ट्रोड है। और अल्टरनेटिव करंट में क्या है कि चेंज होती रहती है, देखो कि कोई बार इलेक्ट्रोड की ओर जा रही है, कोई बार वर्कपीस की ओर जा रही है, तो ये है पोलैरिटी। आर्क वेल्डिंग पैरामीटर, जब हम वेल्डिंग सीखते हैं या कुछ लर्न करते हैं तो हमें ये सब नहीं पता होता कि हम क्या करते हैं, सिर्फ वेल्डिंग जो इलेक्ट्रोड होल्डर है उसको हाथ में हमने पकड़ लिया और जो पार्ट्स है उसके ऊपर हमने घुमाना स्टार्ट कर दिया, स्क्रैच करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उसके पहले हमें ये पैरामीटर ध्यान में रखना होता है कि वेल्डिंग करंट कितना है, कितना वेल्डिंग करंट सेट किया है, कितना वोल्टेज है, कितना वेल्डिंग स्पीड को हम फास्ट रख रहे हैं या स्लो रख रहे हैं, इलेक्ट्रोड का फीड रेट क्या है, स्पेसिफिकली इन द मिग वेल्डिंग, आर्क लेंथ हमने कितनी मेंटेन की है, इलेक्ट्रोड डायमीटर क्या है, हम 2.5 डायमीटर का यूज कर रहे हैं या 4.5 डायमीटर का यूज कर रहे हैं, ज्वाइंट की जियोमेट्री क्या है, रूट ओपनिंग क्या है, उसके बारे में हमें ध्यान रखना जरूरी है। वी हैव टू टेक केयर ऑल दिस पैरामीटर बिफोर डूइंग द एक्चुअल वेल्डिंग प्रोसेस, राइट। तो वेल्डिंग और ये जो पैरामीटर का क्या रिलेशन है, मैं उसके बारे में बताता हूँ कि जो वेल्डिंग करंट है ना, करंट इज प्रोपोर्शनल टू द हीटिंग रेट, है ना, मीन्स जितना आप करंट ज्यादा रखोगे उतनी ही आपको ज्यादा हीटिंग मिलेगी, है ना। तो पहले आप देख लो कि हमारी जो प्लेट है जो हम वेल्डिंग करने जा रहे हैं उसकी थिकनेस कितनी है, किस मटेरियल की वो बनी है, उसके हिसाब से आप क्या करो, वेल्डिंग करंट सेट करो। जब हम वेल्डिंग करंट को बढ़ाते हैं, मीन्स इफ वी इंक्रीज द वेल्डिंग करंट, then what happened on the weld joint, more penetration are there, means का हम ज्यादा पेनिट्रेशन है वो होगा वेल्ड जॉइंट पे, मोर मेल्टिंग मीन्स का ज्यादा यहाँ मेल्टिंग होगा, डिस्टोर्शन भी ज्यादा होगा। क्यों डिस्टोर्शन ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ हीटिंग इफेक्ट ज्यादा है। देन द रेनफोर्समेंट ऑफ द मटेरियल ऑल्सो देयर, मीन्स का रेनफोर्समेंट भी यहाँ ज्यादा होगा। मीन्स जब आप वेल्डिंग करंट बढ़ाते हो तो यहाँ हीटिंग इफेक्ट ज्यादा बढ़ जाती है, पेनिट्रेशन बढ़ जाता है, आपका जो व्हील बिड है वो वाइड बन जाता है और जो उसका अपीयरेंस है वो भी थोड़ा रफ हो जाता है। तो हमें यहाँ ऑप्टिमम करंट यूज करना पड़ेगा। और जब हम वेल्डिंग करंट को डिक्रीज करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा जो हीटिंग है जो वर्कपीस को मेल्ट करने के लिए चाहिए वो कम हो जाएगा। फिर हमारा जो पेनिट्रेशन है वो कम हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा हमारा जो फ्यूजन है वो इनकम्प्लीट होगा और हमारा जो इलेक्ट्रोड है उसका वेस्ट बढ़ जाएगा, मीन्स का जो कंजप्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड है वो ज्यादा हो जाएगा, राइट। देन द सेकंड वन इज द वेल्डिंग वोल्टेज। वेल्डिंग वोल्टेज में क्या है कि जनरली देयर आर द टू वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज एंड द आर्क वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज क्या है कि जब हम वेल्डिंग नहीं करते, मीन्स कि हमने हमारा इलेक्ट्रोड वर्कपीस के साथ कनेक्ट नहीं किया है ना, मीन्स तो उसके दरमियान जो वोल्टेज है ना उसको बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज, मीन्स देयर इज नो एनी लोड कनेक्टेड इन द सर्किट, इज कॉल्ड एज द ओपन सर्किट वोल्टेज। और जब हम वेल्डिंग करते हैं उस टाइम जो हमारा वोल्टेज है उसको बोलते हैं आर्क वोल्टेज। तो जनरली हमारा जो आर्क वोल्टेज है 50 to 30 वोल्ट रहता है और हमारा जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वो 60 to 80 वोल्टेज के अराउंड
रहता है। तो यहाँ हमें वोल्टेज का वैल्यू भी ध्यान में रखना है कि किस वोल्टेज की वैल्यू कितनी है। और जो आप वेल्डिंग मशीन देखते हो इवन फैब्रिकेशन शॉप्स और इन मेंटेनेंस शॉप, तो वहाँ जो मशीन यूज होता है वहाँ वोल्टेज का कोई इंडिकेशन या कुछ डिस्प्ले नहीं होता। जनरली वहाँ करंट का ही डिस्प्ले होता है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो कोई प्रिसाइज प्रोसेस नहीं, प्रिसाइज वर्क नहीं कर रहे है ना। यहाँ जो एप्लीकेशन है सिर्फ हम फैब्रिकेशन ग्रिल का फैब्रिकेशन कर रहे हैं या कुछ रिपेयरिंग कर रहे हैं या कुछ मेंटेनेंस कर रहे हैं। लेकिन जो थोड़े एडवांस मशीन है इसमें आर्क वोल्टेज का, करंट का, थ्रस्ट फोर्स का डिस्प्ले दिया जाता है। वो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ सेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जब हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो क्या होता है। इफ वी इंक्रीज द वोल्टेज then the more porosity, more spatter, है ना, even the we use the more voltage it flats the weld bead। इसको जो हमारी weld bead है वो क्या हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी, है ना। और हमारी जो वेल्ड विड्थ है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इवन यू कैन सी इन द फिगर here 3 joints are made by using a 27 volt, 34 volt and the 45 volt। यहाँ जो वेलिंग किया गया है वो 27 वोल्ट, 34 वोल्ट और 40 वोल्ट 45 वोल्ट यूज करके किया गया है। तो आप देखो कि इसकी जो वेल्ड बीड है ना, वो देखो चेंज होती है। जैसे जैसे ही आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो क्या होता है, उसकी जो वेल्ड बीड है वो फ्लैट होती जाती है और क्या हो रही है, उसकी वेल्ड बीड बढ़ जाती है। तो हमें ऑप्टिमम वेल बिल लाने के लिए हमें ऑप्टिमम वोल्टेज का वैल्यू सिलेक्ट करना पड़ेगा। वेलिंग स्पीड, यहाँ एक और फिगर है वेलिंग स्पीड की। देखो कि आप जब वेलिंग स्पीड बढ़ाते हो तो क्या होता है, जब आप वेलिंग स्पीड फास्ट करते हो तो आप यहाँ फिगर में देख सकते हो कि जो हीट जनरेशन है वो बहुत कम होता है और जो डिपोजिशन रेट है वो भी फिलर मटेरियल का जो डिपोजिशन रेट है वो भी कम है, हो जाता है। और जो रेनफोर्समेंट है वो भी कम हो जाता है। देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द अंडरकट्स और देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द आर्क ब्लो, देयर इज अ पोरोसिटी एंड द अनइवन बीड शेप। ये जो सारा है जब हम फास्ट स्पीड रखते हैं वेल्डिंग होल्डर की या वेल्डिंग प्रोसेस की, तो ये हमें देखने को मिलता है। लेकिन जब हम प्रोसेस को क्या करते हैं, स्लो कर देते हैं। प्रोसेस को स्लो करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो डिपोजिशन रेट है वो बढ़ जाएगा, हमारा जो रेनफोर्समेंट है वो बढ़ जाएगा, यहाँ ज्यादा हमें हीट इनपुट मिलेगा, हमारा जो वेल्ड बीड है ना, जो वेल्ड बीड की विड्थ है वो बढ़ जाएगी, हमारा जो पेनिट्रेशन है ना वो कम हो जाएगा। नहीं तो लार्ज वेल्ड पुल यहाँ में ज्यादा है ना, एक बड़ा वेल्ड पुल देखने को मिलेगा। और जो हमारा वेल बीड है वो रफ हो जाएगा और यहाँ स्लैग भी ज्यादा फॉर्मेशन, स्लैग का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, है ना। इसको बोलते हैं स्लैग इंक्लूजन। यहाँ एक इम्प्योरिटीज भी यहाँ आ सकती है जब हम स्लो स्पीड का यूज करेंगे। दीज आर द वेल्डिंग इलेक्ट्रोड एजुकेशन। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप मार्केट में कोई वेल्डिंग रोड लेने जाते हो, परचेस करने लिए जाते हो, तो आप कहते हो कि हमें 7018 वेल्ड चाहिए, इलेक्ट्रोड चाहिए, 6013 इलेक्ट्रोड चाहिए। तो ये हमें जानना जरूरी है एज अ इंजीनियर कि इसका डेजिग्नेशन क्या है ना। तो ई मीन्स द इलेक्ट्रोड्स, 70 मीन्स इट इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द materials. Then the one indicates the position of the weld in which means ये जो इलेक्ट्रोड है उसका हम उपयोग किस पोजीशन में कर सकते हैं, वो वर्टिकल है, फ्लैट है या हॉरिजॉन्टल है, इसके लिए हमें यहाँ इंडिकेशन दिया गया है 1। देन द थर्ड डिजिट एंड द फोर्थ डिजिट कंबाइंस gives the information about the flux, मीन्स किस टाइप का फ्लक्स ये इलेक्ट्रोड में यूज किया गया है। तो यहाँ देखो 70 मीन्स 70,000 PSI है ना। सम कंपनीज मेट्रिक यूनिट भी यूज करती है
लाइक यहाँ PSI यूनिट दिया गया है, और 1 है वो पोजीशन के लिए है, और जो 1/8 है वो फ्लक्स मटेरियल के लिए यूज होता है। और साइड में यहाँ एक टेबल दिया गया है जिसमें आप इलेक्ट्रोड डाया के अकॉर्डिंग कितना हमें करंट रखना है वो हम सेट कर सकते हो, राइट। तो जितना ज्यादा डायमीटर रखे, मीन्स इफ यू इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड यू रिक्वायर अ मोर करंट, क्योंकि उसको मेल्ट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, उसको ज्यादा हीट चाहिए, ज्यादा हीट होगी तब जाके वो क्या होगा कि वो मेल्ट होगा। सो यू हैव टू रिमेंबर सेफ्टी प्रोटेक्शन। ये सेफ्टी प्रोटेक्शन थोड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि why in the welding industry are facing too much shortage of the expert of the experts, welding experts, means welding जो इंडस्ट्री है, क्यों वेल्डिंग एक्सपर्ट की शॉर्टेज फील कर रही है या एक्सपीरियंस कर रही है, बिकॉज ऑफ ये जो प्रोसेस है इसमें थोड़ा सेफ्टी वाला इश्यू है ना। But nowadays there are the advanced safety or the protection equipment are designed so you have no any effect on your body, है ना। आपको कोई भी इसकी इफेक्ट आपकी बॉडी पे नहीं आएगी, है ना, क्योंकि ऐसे एडवांस जो प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट है, फॉर एग्जांपल हेलमेट है या सूट है या शूज है या ब्रीथिंग इक्विपमेंट है, ऐसे डिजाइन किए गए। इवन company also designed a space where the proper ventilation are there, proper safety equipments are there, so the no any damages, no any harmful effect to the body, मीन्स कोई भी इफेक्ट आपको नहीं होती है, क्योंकि जब आप कुछ बड़ी MNC में जाते हो विजिट करने के लिए तो आप देखते हो कि वहाँ एक वेल्डिंग का पूरा एरिया है, वहाँ आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगा, वहाँ आपको प्रॉपर कर्टन मिलेंगे, जिसको वेल्डिंग कर्टन मिलेंगे, जो आर्क है वो विजिबल दूसरे को नहीं होगा। इसके बहुत सारी ऐसी एक्सट्रीम केयर ली जाती है जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं। लेकिन आप देखते हो कि जब आप मेंटेनेंस शॉप और जो रिपेयरिंग शॉप और कुछ फैब्रिकेशन शॉप में जाते हो तो वहाँ कोई सेफ्टी इक्विपमेंट या कुछ सेफ्टी केयर नहीं ली जाती, राइट। लेकिन आई रिकमेंड यू दैट यूज द प्रॉपर हेलमेट, यूज द प्रॉपर वेल्डिंग सूट एंड द शूज ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस, क्योंकि ये जो प्रोसेस है थोड़ी डिफिकल्ट है बॉडी के लिए या थोड़ी डैमेज कर सकती है आपकी बॉडी को, तो आपको यहाँ केयर रखनी है। देन अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी क्या है? अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी है ना, आप सबको शायद पता होगा कि इट इज अ वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन इन द एरिया ऑफ वेल्डिंग, राइट। और अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी इसमें स्टूडेंट्स है, इंजीनियर्स है, कंपनीज है, वो ऑलरेडी है ना, मीन्स इसमें इन्वॉल्व है। क्यों इन्वॉल्व है? बिकॉज अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी डू अ लॉट्स ऑफ एडवांसमेंट एंड द लॉट्स ऑफ रिसर्च एंड सॉल्विंग द डिफरेंट प्रॉब्लम्स in the area of welding, right? So it is a very important work of the American Welding Society. Then also American Welding Society standardized the classification of the various consumables and the processes, है ना। ये जो AWS है वो वेल्डिंग प्रोसेस को और कंज्यूमेबल्स को क्या करते हैं, वो स्टैंडर्डाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द कोड, मीन्स कि उसने क्या किया है, डिफरेंट कोड जो है वो डिजाइन किए हैं, है ना। इससे जो लर्नर्स है, जो बिगिनर्स है, जो कंपनीज है और जो टेस्टिंग एजेंसी है उसको गाइडलाइंस मिलते हैं कि हमें क्या करना है। देन द स्टैंडर्डाइज प्रोसेस प्रोसीजर, राइट। then the provide welding certification, means AWS also provide some certification course to the individuals for the interested candidate, मीन्स वो सर्टिफिकेशन कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप उसको पास करते हो तो आप अच्छी कैरियर इसमें बना सकते हो। यहाँ मैंने एक पॉइंट लिखा है कि IIW मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द वेल्डिंग,
है ना। जिस तरह अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी है उसी तरह यहाँ अपनी इंडियन सोसाइटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द वेल्डिंग. It is also do a lots of research, lots of advancement in the area of the welding. Also do some standardize the process and also provide some certification course, and also provide some bachelor degree, right? So these all are the American Welding Society and the IIW. I think Pari University have a student chapter of the IIW, right? Yes, sir. And Yes. yeah, Yes, yes. sir. We have So a chapter of IIW. तो मैं सबसे जो इंटरेस्टेड है वेल्डिंग में, वो आप IIW को ज्वाइन कर सकते हो. कर सकते हो. अभी सर ने बोला कि पारुल है IIW student chapters collaborated with the IIW Baroda branch. So you can take the benefits, advantage of the workshops, seminars, and the training from the IIW. Now the last slide is the careers in the welding. मीन्स आप किस तरह वेल्डिंग में अपना कैरियर बना सकते हो. आप वेल्डिंग कोर्स करके या वेल्डिंग स्किल सीख के आप एज अ इंजीनियर काम कर सकते हो, एज अ वेल्डर फैब्रिकेटर काम कर सकते हो. और बहुत सारी ऐसी एमएनसी है, फॉर एग्जांपल जो फ्रोनियस है, लिंकन है, इसमें आप एज अ सेल्स पर्सन काम कर सकते हो. You can also work as a tanner in the industry. You can also perform your duty as an inspector, like the destructive testing and the not destructive testing. And you can also work as a technicians and underwater welder, right? आप सबको पता है कि underwater welder है वो थोड़ी different process है compared to the routine जो हमारे प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हमें जो वेल्डिंग करना है वो अंडर वाटर करना है. तो सिचुएशन टोटली डिफरेंट है. और यहाँ वेल्डर के पास दो स्किल चाहिए, और डाइविंग स्किल चाहिए, स्विमिंग स्किल चाहिए, और और जो हमारा जो पार्ट्स है वो पानी में है ना, उसमें हमें वेल्डिंग करना है. तो वहाँ जो सिचुएशन है वो टोटली डिफरेंट है. और इसलिए जो अंडर वाटर जो वेल्डर है, अंडर वाटर वेल्डर है, वो क्या है कि दे कैन अर्न मोर देन 1.5 करोड़ 1 करोड़, है ना, क्योंकि इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. That's why they are earning the more than 1 crore and 1.5 crore. Then the robotic welding means आप nowadays आप देखते हो इंडस्ट्री में कि बहुत सारी जो प्रोसेस है वो ऑटोमेशन पे है. इवन यू कैन सी एन एग्जांपल ऑफ द रोबोटिक वेल्डिंग ना. जब आप कुछ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देखते हो तो वहाँ रोबोटिक वेल्डर है, या कुछ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में देखते हो तो वहाँ कुछ रोबोट्स है. तो वहाँ क्या हो रहा है कि वहाँ रोबोटिक वेल्डिंग करने के लिए उसका कंप्लीट सेटअप लगाना पड़ेगा. किसका? रोबोट का. और रोबोटिक वेल्डिंग करने के लिए वहाँ उसका रोबोट का प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा. और रोबोटिक का प्रोग्रामिंग आप तब कर सकते हो जब आप एक्चुअल वेल्डिंग प्रोसेस को जानते हो, उसमें आपके पास स्किल होगा, उसमें आपकी कुछ एक्सपर्टाइज होगी, तब जाके आप रोबोट को ट्रेन कर पाओ. तो यहाँ आज के समय में या नाउ डेज देयर द रिक्वायरमेंट ऑफ द रोबोटिक वेल्डिंग इंजीनियर और टेक्नीशियंस. और यू कैन ऑल्सो मेक योर कैरियर इन द बॉयलर मेकर, देन द मेटालर्जिस्ट, है ना वो, राइट. और दूसरी बात ये कि अभी आप बैचलर डिग्री में हो और आगे जाके आप कुछ कैरियर बना चाहते हो इन द एरिया ऑफ द वेल्डिंग, देन यू कैन चूज योर मास्टर डिग्री in the material science and the metallurgy, and make oneself as a metallurgist. Then the business owner, right? अभी थोड़ा आत्मनिर्भर का एटमोस्फियर चल रहा है. in the our prime minister also says that to become आत्मनिर्भर, so you can also start your business and become आत्मनिर्भर. And welding is a very vast field, very big area, so you can get what you want, and as per your skill, yes, you are gaining the knowledge. So the many more possibility are there, many opportunity are in the welding, but the condition is that what you achieve, what you gain, what type of skill you have.
Right. Okay, now here I am ending my sessions. If any question you can ask. Yes, we will. I will see any questions. Okay, sir. Chat box. Yes, so viewers, if you have some doubts, please write in chat box. Okay, sir. Proceed. So I'm there is no questions I'm seeing right now in chat box. Okay, if you have any doubts and any questions, please write. Even you can. Okay, sir. Okay, if any doubts and question, you can send me. I will forward that questions to the sir. Due to time limitations, we are going to end this session over here. Okay, thank you all viewers and students for attending these webinars. Thank you once again, sir, for delivering such informative sessions on the welding. As you have explained well regarding welding process, what are the advantages, disadvantages, comparisons of weldings, welding positions, and different welding parameters and their effects are also explained very well. And even last and not least, you have given the guideline regarding the career opportunities for the students in the field of welding. So thank you very much. Thank you once again for imparting your knowledge of welding with our students. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir, for giving the opportunity. Okay, thank you. Yes, Thank you. thank you, sir.